Exactly what you need to score a perfect band 9 in your IELTS listening. In this video, I will be starting with the very basics, the latest 2026 IELTS listening pattern, the test format, the band score criteria, your weak areas, the traps you must avoid, the common mistakes you must avoid, and how you can score a perfect band 9 in your IELTS listening. So make sure to watch this video till the end if you also aim for a band 9. As in this video, I will also be giving my personalized feedback and my guide on complete IELTS listening course. So without wasting time, the first part of the video is the exact 2026 format. In this 2026 format, section 1 will focus on blanks, but here you need to focus on the instructions very carefully. For example, in the section 1, you will get all 1 to 10 blanks, and these are very easy to solve, undoubtedly, but the most important part though is you must focus on some areas here. Blanks are the areas you where may you score 10 on 10, or where you may either lose your bands just because of some silly and common mistakes. We will discuss those common mistakes side by side. But before I start, the 10 questions will be very easy based on sentence completions. It will be the topic on any social conversation between two people. Part 1 will focus on a social conversation between two people, and the instructions you will be giving as one word and or a number. So before the audio starts, you have to read the instruction very carefully. And after that, you can see there are 10 sentence completions. And the most interesting part though here is you are not supposed to do all the 1 to 10 blanks in one go. You have to do these blanks in two different parts. First, the audio will be played and you will be given some time to read the questions 1 to 5 or 1 to 4 or 1 to 6 depending on the type of the listening test you have been given in your test day. And on the second hand, you will be given again some time to read the next half set of questions, and then the audio will be played, and then you have to complete all the rest of the questions. So here you have the opportunity to complete all these 10 questions with a complete focus, and you can even score 10 on 10 in listening section 1. Talking about the listening section 2. Listening section 2 may vary. First of all, in this test, you have been given some matching the list of information, where some information have been given in the boxes, and there are some questions 11 to 16. There are some questions and you have to match each of the following question with any of these given information in the box. The most important part here in matching information is, first important thing is you have to pay full attention to the synonyms only. The complete audio and the complete answers will be given on the base of the synonyms and the paraphrased language. So you must focus, you must know what is the paraphrased language and what are the synonyms. So this is completely based on synonyms and paraphrased language. Second important thing here to note is that all these questions will be always in order. These questions, the third important thing is the speaker will repeat these exact same lines from the question, but the speaker will vary and use the synonyms and paraphrase language to match from the given heading. The tip here is that you have to mark down the keywords and the nouns, the actions, the verbs when you will be given some time to read the questions. So again, these questions are important as you may be getting at least 6 to 10 these types of questions in your IELTS listening test. Either you're giving it on a paper or you're giving it on a computer. Both the format of CD based IELTS exam listening and pen paper based listening is same to same. But there are some things that vary. We will be discussing all these things along and side by side. The second part, in section 1, you will be given only one single type of question, whereas in section 2, there will be two different types of questions in section 2. So first we have discussed matching information. Second, you have here short multiple choice questions, right? And you may get a map here also. Second part, you may get a double multiple choice questions where you have to choose more than one options. And the key here is there are two important things again for multiple choice questions. First important thing is you mainly have to focus on the phrases and the connectors that will get you the correct answer.
and second important key is going along with the track. जो audio में बोला जा रहा है, you have to focus on that audio. And again in section, now comes the section 3. In section 3, again, there are two different types of questions you may come across. Again, the first important type is matching the information. So again, these types of questions are in trend in 2026. You may even get these types of questions in section 1 as well. As on 31st Jan and on 7th Feb, these questions were itself observed in section 1 only. And you have to again read the instructions, choose 5 answers from the box and write the correct letter A to G next to questions 21 to 25. So you don't need to write the full statement, the full answer. You just need to match the alphabet and the letter. For example, 21 is F. Let's say, for example, it is that is it. So you have to, for example, you have to read the instructions very carefully and then you have to write down your answer. So here again you have to mainly focus on the synonyms and the paraphrase language. And the next part is again you may get long multiple choice questions here or also double multiple choice questions in section 3. But the trend recently has been changed and you have been getting 2 words sentence completion in section 3 as well. So it depends. Blanks are very important. And section 4. Coming to the last section, section 4, there are 4 parts and fourth part is blanks only. And this is the most standard pattern from years. You will be getting only 1 word sentence completions from 31 to 40. But you have to make sure that you read the questions 31 to 40 in one go when you will be given some time to read the questions. Unlike in section 1, in section 3 and in section 4. Basically in section 4, you will have to complete 31 to 40 questions all in a single go. So you have to be very focused. You have to mark down some keywords, predict some answers before the audio starts. So this is the pattern for the IELTS listening. Now let us discuss what is exactly, I can say, the band score chart looks like. So here is the band score chart. If you want to score only 6 bands, some students they have only target score to score 6 or 6.5, then you are good to go between 23 to 25 correct answers out of 40. As there are 40 questions total, 10 questions each part, and you can only score 6 band if you are good to go for 23 to 25 correct answers. For 26 to 29, you will get 6.5 band. And for 30 and above, you will get 7 plus band. And for 9 band, you only have one single choice to do only one answer, attempt one only wrong answer. So 13 and 40, you will get a score, a band score of a perfect 9. So scoring a 9 is not impossible. It is possible, and it is possible only if you follow IELTS with Aman. As in this video, I will be discussing each and everything in detail. What tips you have to follow, what are the common mistakes that you should avoid, and also we'll practice side by side a complete listening today. So let's discuss some important tips about the sentence completions first of all. So in sentence completions, there matlab you should be very sure that even if you get 10 sentence completion, even if you get 20 or 30 sentence completions, your target should be that all the sentence completions should be correct. So there are many traps, there are many common mistakes that you must avoid in order to score all 30 on 30 or even 10 on 10 in your blanks. But make sure that minimum questions you will be getting on your test day is a 20 blanks is very important. You have to keep care this thing in your mind कि minimum 20 questions जो blanks है वो आपको आने ही आने हैं. Section 1 में आएंगी blanks for sure, section 4 में आएंगी blanks for sure. Trend has been changed as I recently discussed कि section 3 में भी आपको blanks आने के chances रह सकते हैं. सबसे पहला tip number here is you have to read the instructions clearly. If the word limit says no more than 2 words, that simply means कि आप 2 words से ज़्यादा का आंसर नहीं लिख सकते हो. या तो आपका आंसर 1 word में आ सकता है या आपका आंसर maximum to maximum 2 words में आ सकता है. This doesn't necessarily mean कि यहाँ पे अगर 2 words लिखा गया है तो आपने 2 words का ही लिखना है. तो आंसर may be in 1 word as well. It depends on the question. Second important thing is you make sure you understand what type of answer is required. जब आपको time मिलता है to read the questions, at that time you have the very good opportunity
to guess the answers, to predict the type of answer कि यहाँ पे noun आएगा, number आएगा या कोई डेट आएगी. अगर आप इतना काम पहले ही कर लोगे तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा. इसके बाद एनालाइज दी सेंटेंस बिफोर लिसनिंग. जब आपको ऑडियो स्टार्ट होती है तो आपने उसके पहले ही थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है कि व्हाट टाइप ऑफ आंसर इट कैन बी. लुक फॉर द कंटेक्स्ट क्लूज. आपने हेल्प देखनी है ताकि आपको हेल्प मिल सके, पता लग सके कि कौन सा आंसर कहाँ पे फिट हो सकता है वेरी वेरी इजीली. इसके बाद फोकस ऑन द कीवर्ड्स. आपने कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करना है. पे अटेंशन टू कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द क्वेश्चन. Often the recording will paraphrase rather than repeat the exact wording. So listening में भी कभी भी आपको सेम टू सेम लैंग्वेज रिपीट नहीं होगी. हमेशा आपको सिनोनिम्स ही देखने को सुनने को मिलेंगे. You have to look for synonyms only. Don't look for same to same word. अगर same to same word ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा. And you have to underline और highlight keywords to stay focused. Even अगर आप पेन पेपर बेस एग्जाम देते हो, आपके पास पेन होगा, ब्लैक पेन से आपने एग्जाम करना होता है. You can underline the keyword. एंड अगर आप सीडी बेस एग्जाम दे रहे हो, यू कैन सिंपली राइट क्लिक एंड नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं दो, नोट्स का एंड हाईलाइट का. तो यू कैन हाईलाइट द कीवर्ड्स. विदाउट हाईलाइटिंग आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है अनलेस यू आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. बी अवेयर ऑफ सिनोनिम्स एंड पैराफ्रेजिंग, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. वॉच फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वॉच फॉर डिस्ट्रैक्टर्स. The speaker may correct themselves or provide extra information that can mislead you. समटाइम्स स्पीकर आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देगा, अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करेगा, या समटाइम्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देगा ताकि वो ऑडियंस को मिसलीड कर सके. सो यू हैव टू फोकस ऑन द फाइनल आंसर एंड स्टे अलर्ट फॉर चेंजेस. समटाइम्स वो चेंज करेगा अपने आंसर्स को, तो आपने फाइनल आंसर के लिए बेसिकली देखना है एंड आपने ये मेक श्योर करना है कि जो फाइनल उसने बोला वही उसका आंसर सही होता है. सो यू हैव टू फोकस कंप्लीटली कि व्हाट इज द एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर. उसके बाद स्पेल द आंसर करेक्टली. स्पेलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद स्पेलिंग्स के साथ ही साथ एक और चीज आती है कि आपने सिंगुलर आंसर आएगा या आपका प्लूरल आंसर आएगा. दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ऑलवेज डू. मतलब 2-3 आंसर्स ना आपकी इसकी वजह से ही गलत हो जाते हैं. आपको यही नहीं पता कि सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा. इसके बाद सेकेंड ही कॉमन मिस्टेक बहुत होती है आर्टिकल्स की. स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि अ आना है या अ नहीं आना, तो इसकी वजह से भी काफी सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं. स्पेलिंग्स की वजह से भी आप 2-3 आंसर्स गलत कर जाते हो. तो मेक श्योर करो कि आपकी स्पेलिंग्स का इसका हल पता क्या है. जब भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हो, लेट्स से आपने एक लिसनिंग का प्रैक्टिस टेस्ट किया, उसमें से आपके 2 स्पेलिंग्स गलत निकले सिर्फ, तो एक नोटबुक लगा लो अलग से, जहां पे जो भी आप लिसनिंग की प्रैक्टिस करो, जितने भी आपकी स्पेलिंग्स रॉन्ग हो उसके आप नोट्स बना के रख लो साइड बाय साइड, क्योंकि वही स्पेलिंग्स रिपीट होते रहते हैं अक्सर लिसनिंग में. कभी वो न्यू स्पेलिंग्स नहीं होते जबकि गलत होते हैं. फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन, नेसेसरी, म्यूजियम, नॉलेज, डॉक्यूमेंट्रीज, क्वेश्चनियर्स, ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं. ये अक्सर स्टूडेंट्स के रॉन्ग हो जाते हैं. ये आपको मैं चीजें इतनी क्लियरली बता रही हूँ कि अगर आपने इन चीजों पर फोकस कर लिया तो आपको क्राइटेरिया पता चल जाएगा हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने क्लियरली स्पेलिंग्स लिखने हैं, सिंगुलर है या प्लूरल है इसका आपने ध्यान रखना है. मतलब 5 क्वेश्चंस आपकी इस वजह से जो गलत होते हैं आगे से वो आपके गलत होने नहीं चाहिए. राइट एज यू लिसन. डोंट वेट अंटिल द रिकॉर्डिंग एंड्स टू राइट योर आंसर. जस्ट आपने राइट एज यू लिसन एंड कीप योर अटेंशन ऑन द नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जो जो जैसे आप सुनते हो वैसे ही आंसर्स को लिखो एंड आपकी आंखें आपकी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट आंखें आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पर भी टिकी रहनी चाहिए. लिसनिंग कहने को बहुत इजी मॉड्यूल है बट इट रिक्वायर्स मल्टीटास्किंग. यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड, यू हैव टू राइट, यू हैव टू चेक. मतलब मल्टीटास्कर अगर आप हो तो आपके लिए मुश्किल नहीं है. एंड यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद इंग्लिश एनवायरनमेंट अगर आपने लिसनिंग में 9 स्कोर करना है, अगर आपका इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा कम है तो. अदरवाइज इफ यू आर गुड इनफ एट इंग्लिश, दिस वीडियो, दिस कंप्लीट कोर्स, दिस कंप्लीट गाइड विल हेल्प यू अ लॉट इन स्कोरिंग अ बैंड 9. ये है सेंटेंस कंप्लीशन जो आपको सेक्शन 1 में आएंगे, 3 पॉसिबल आ सकते हैं एंड सेक्शन 4 में भी आपको देखने को मिलेंगे. इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज मैप.
मैप में हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शनल वोकैबुलरी, डायरेक्शन बताने वाली वोकैबुलरी, कि आपने टर्न राइट करना है, स्ट्रेट जाना है, सेकंड टर्न लेना है, थर्ड लेफ्ट लेना है, एडजसेंट टू है, अक्रॉस है, बिटवीन है, तो कंटिन्यू दी पास्ट है। तो ये डायरेक्शनल वोकैबुलरी आपके बहुत काम आती है, अगर आपको पता है देन वेरी गुड, अदरवाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज टाइप्स ऑफ वोकैबुलरीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दी लैंडमार्क्स एंड दी प्लेस आइडेंटिफायर्स। कई बार आपको ना मैप के अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी दी गई होती हैं, मेन रोड, रिवर, ब्रिज, कार पार्क, कोई कैंपस है, कोई कैंपेन है, मेन गेट है, एग्जिट है, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साउथ गेट है, साउथ वेस्ट गेट है, नॉर्थ वेस्ट गेट है, ये होती हैं आपकी लैंडमार्क्स एंड प्लेस आइडेंटिफायर्स। इनको भी आपने मार्क करना बहुत जरूरी होता है। मैप में एक चीज को ध्यान रखना कि अगर आपका पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया तो आगे के सारे क्वेश्चंस आपके गलत ही होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए टिप आपको बता रही हूँ, आपने सबसे पहले कंफ्यूजन हियर इज कि वेयर यू हैव टू स्टार्ट, कि आप कहां पर खड़े हो। ये चीज देखने के लिए क्या आपने मैप को देखना है या आपने ऑडियो को सुनना है? तो ये चीज देखने के लिए आपने ऑडियो को सुनना है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो, आपका मैप की डायरेक्शंस कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। स्पीकर ऑडियो में बोलेगा हमेशा यू आर एट दी डैश, कि आप कहाँ पर हो। तो स्टार्टिंग अगर आपकी सही पकड़ लिया आपने तो आपका आगे वाला मैप गलत नहीं होगा। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 फॉर मैप इज कि आपने अपना पेंसिल या आपने अपना पेन जो भी आपके हाथ में है वो आपने डायरेक्शन के साथ स्पीकर की ऑडियो के साथ मूव करना है। यू आर एट द मेन एंट्रेंस, गो स्ट्रेट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, गो अबाउट द राउंड अराउंड, जहां जहां स्पीकर ने जो बोला वहीं वहीं आपने पेंसिल वैसे वैसे ही घुमानी है ताकि आपको लोकेशन का पता लग सके, राइट। एंड आपने ये वोकैबुलरी जो है इसको भी अपने साथ में आपने ध्यान रखना है। दो चीजें, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पेंसिल आपकी वहीं वहीं जाए जहां जहां पर एग्जामिनर ने बोला, राइट। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी मैप की वोकैबुलरी, डायरेक्शंस वोकैबुलरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैप स्टार्ट करने से पहले आई विल रिकमेंड कि कंपास डायरेक्शंस आप हमेशा याद रख लो। नॉर्थ साउथ ये होता ही होता, आपको पता है कि नॉर्थ एंड साउथ है। समटाइम्स कंपास डायरेक्शंस आपको दी रहती है बट आजकल ये आपको कंपास डायरेक्शंस दी नहीं रहती, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ऊपर है, साउथ यहाँ पर है। मेन डाउट होता है कि वेस्ट एंड ईस्ट कहाँ पे है, तो ये आपका वेस्ट है होता है, ये आपका ईस्ट होता है, मतलब वही। अगर आप वही याद रख लोगे तो आपका ये कभी भूलोगे नहीं कि वेस्ट है या ईस्ट है। दिस कॉर्नर विल बी नॉर्थ ईस्ट, this corner will be southeast, this corner will be northwest and this corner will be southwest। तो ये डायरेक्शन वोकैबुलरी, कंपास डायरेक्शंस, ये भी आपकी बहुत सारी काम आती हैं। तो मैप अक्सर एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, तो ये मैप के बारे में चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इसमें 99% स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मैचिंग द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैंने आपको टिप दी थी कि आपने जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं या जो फ्रेजेस हैं आपने उनको हमेशा सुनना है, कि हमेशा स्पीकर बोलेगा। अगर आप उसने आंसर को अलोंग एलिमिनेट करना है देन ही विल स्पीक हाउ एवर, पहले पॉइंट बोल देगा, देन उसके बाद अगर हाउ एवर लगा दिया, बट लगा दिया, इनमें से कुछ भी ऑप्शन लगा दिया तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा एलिमिनेट। सो फोकस ऑन एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स साइड बाय साइड। तो ये फ्रेजेस हैं, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कनेक्टर्स हैं जो स्पीकर यूज करेगा टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शन। दिस थिंग इज फॉर श्योर कि मल्टीपल चॉइस में स्पीकर अगर 3 ऑप्शन है तीनों बोलेगा, 4 ऑप्शन है वो चारों बोलेगा, लेकिन वो साथ ही में आपको बता देगा कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन सही है, यूजिंग सम कनेक्टर्स, यूजिंग सम फ्रेजेस। अब ये जो नेक्स्ट फ्रेजेस हैं ये वो फ्रेजेस हैं जो एग्जामिनर यूज कर सकता है टू इंडिकेट द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्राइमरीली, एसेंशियली, द मेन रीजन। फॉर एग्जांपल सच एज, मतलब अगर कोई ऑप्शन उसने बोलना कि ये सही है तो या तो क्वेश्चन में से उठाएगा अपना फ्रेज, क्वेश्चन में से वो मैच करेगा, या तो इनमें से ऐसा ही कुछ फ्रेज लगाएगा ताकि आपको ये बता सके कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ये phrases will help you to get to the correct answer multiple choice questions में। Otherwise, you have to completely pay attention on what the speaker and the audio is saying। इसके बाद ये कुछ अगेन कुछ phrases हैं जो सेंटेंस स्टार्टर्स हैं, वो स्पीकर ऐसा यूज कर सकता है। एट फर्स्ट आई थॉट, उसने पहले सोचा, दैट मीन्स कि जो वो पॉइंट बोलने वाला कि वो ऑलरेडी गलत है। एट फर्स्ट उसने ये सोचा लेकिन करेक्ट आंसर इज दिस।
आई यूज्ड टू थिंक दैट, बट एक्चुअली। तो ये अगेन वही फ्रेजेस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो स्पीकर यूज करता है। ये जो मेरी पीडीएफ है, ये जो मेरे नोट्स हैं, दिस पीडीएफ एंड दीज नोट्स हैव हेल्प्ड मेनी स्टूडेंट्स in मतलब mastering multiple choice questions and in mastering maps, sentence completion and scoring 9 in IELTS listening. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब now we will be doing a complete set of listening test 1 to 40 questions and आपने भी साथ में कमेंट में अपने आंसर्स ड्रॉप डाउन करने हैं। आपका कितना स्कोर आया, अगर आपको स्टिल कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई गलती रहती है, तो यू कैन आस्क मी अगेन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So here is the complete listening test. I'm going to now start the audio and साथ में ही मैं आपको हर एक चीज की बारीकियां भी समझाऊंगी। एंड अगर आप ये वीडियो एंडिंग तक देख लोगे, इसके बाद आपको लिसनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड साथ ही नोट्स बना लेना, टिप्स की नोट्स बना लेना कि किस क्वेश्चन में मैंने कौन सा टिप बताया। So without wasting time, let's get started. Begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. सो एक बार ही रिकॉर्डिंग प्ले होती है, दोबारा रिकॉर्डिंग प्ले नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस, नो मोर देन। यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखा हुआ है, एंड और अ नंबर। अ नंबर मतलब या तो आपका आंसर 3 वर्ड्स का यहाँ पे पॉसिबली आ सकता है, या तो आपका आंसर इसमें 2 वर्ड्स का भी आ सकता है, 1 वर्ड का भी आ सकता है, प्लस इन सभी के साथ अगर पॉसिबली आंसर डिमांड करता है तो एक नंबर आ सकता है। नंबर एक से ज्यादा नहीं आएगा। वर्ड्स मैक्स टू मैक्स 3 आ सकते हैं, नंबर आपका एक ही आएगा। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो इंस्ट्रक्शंस को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे पेन पेपर बेस दे रहे हो, चाहे आप सीडी बेस एग्जाम दे रहे हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। Listen carefully and answer questions 1 to 5. अभी आपके पास सिर्फ ऑप्शन क्या है, आपने 1 to 5 क्वेश्चन ही रीड करने। यही मैंने पहले समझाया कि 1 to 10 क्वेश्चन आपने एक साथ इकट्ठे नहीं करने होते, तो 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट इतने फोकस के साथ कर सकते हो ना कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएं। सो लेट्स डू इट। Hello, Motor Insurance Department. Oh, hello. I'd like to ask about insurance for my car. Yes, of course. I'll just take a few details. What's your name? Patrick Jones. सो व्हाट्स योर नेम? पैट्रिक जोन्स। आपको देके ही रखा गया है, पैट्रिक जोन्स। And your address? It's 27 Bank Road. एंड योर एड्रेस। तो हमने पहले ही यहाँ पे अगर एड्रेस है आपके पास, जब टाइम मिलता है आपने गेस वर्क कर लेना है। एंड योर एड्रेस, तो पता है एड्रेस कैसा होता है, 39 हाउस नंबर 39 समथिंग लाइक दिस। तो उसने यहाँ पर क्या बोला, 27 बैंक रोड। तो यहाँ पे आपने लिखना कैसे है, 27 आप ऐसे नंबर्स में लिखोगे, 27, इसके बाद BANK बैंक, देन ROAD रोड। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पेन पेपर बेस एग्जाम देते हो देन मेक श्योर ये करो कि टू अवॉइड दी राइटिंग कंफ्यूजन आपके सारे वर्ड्स इन कैप्स में होने चाहिए। BANK ROAD सारा आपका कैप्स में ही होना चाहिए। अगर आप CD बेस एग्जाम देते हो देन ऑल्सो फॉलो द सेम रूट। ईदर आप सारा का सारा रीडिंग हैंड में करो, स्मॉलर में करो, लोअर केस में करो, या ईदर सारा का सारा अपर केस में करो, इट डिपेंड्स। क्योंकि सीडी बेस में राइटिंग की कंफ्यूजन नहीं होती है, बट पेन पेपर बेस में राइटिंग की कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे 27 एक नंबर आ गया, बैंक रोड आपके आगे 2 वर्ड्स। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो है ऑक्यूपेशन, मतलब वो क्या काम करता है। तो एक वर्ड का बेबी यहाँ पे आ सकता है कि वो क्या काम करता है, तो आपने इसको ध्यान से सुनना है। थर्ड जो क्वेश्चन यहाँ पर है, टाइप ऑफ कार। तो मैन्युफैक्चर कार का ये है न्यूटन। तो मॉडल क्या है इसका, कार का मॉडल कौन सा है। यहाँ पे कोई नंबर भी आ सकता है या कोई नेम भी आ सकता है कि कार का मॉडल का नंबर क्या है या कार के मॉडल का नेम क्या है। तो ये अपने ध्यान से सुनना है। प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा। इसके बाद है आपका इफ यस, तो यस तो टिक किया ही हुआ है। गिव ब्रीफ डिटेल्स, तो कार वॉज डैश इन 1999। तो यहाँ पे लिखा है एनी इंश्योरेंस क्लेम्स इन द, कोई इंश्योरेंस है, उसने बोला यस है। तो अगर यस है तो गिव ब्रीफ डिटेल्स। तो कार वॉज डैश, कार को क्या हो गया था, मतलब कोई यहाँ पे एक्शन आएगा, कोई यहाँ पे वर्ब में आंसर आएगा, नाउन नहीं आएगा, कोई एक्शन आएगा, कोई वहां पे वर्ब में आंसर आएगा। इसको बोलते हैं आंसर्स को पहले ही जब आपको टाइम मिलता है यू हैव टू प्रिडिक्ट द आंसर्स की आंसर नाउन आएगा, नेम आएगा, नंबर आएगा, या कोई कुछ भी फोन नंबर है, या डेट आएगी, या टाइम कैसा आंसर आएगा, ये आपने पहले ही प्रिडिक्ट करके रखना है। सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस, तो लेट्स प्ले द ऑडियो नाउ।
27 Bank Road. Is that in Greendale? Yes. And what's your daytime phone number? My work number is 730453. अब उसने बोला 730453। अब इस चीज का अगला इंपॉर्टेंट टिप हियर इज दैट कि वो जीरो को ओ बोलते हैं समटाइम्स, लिसनिंग में वो जीरो को ओ बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, नंबर वो या तो ट्रैप यहाँ पे कर देते हैं, पहले वो रॉन्ग बोल देंगे फिर वो सही बोल देंगे, या पहले आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से अगर वो नेम भी बोलते हैं तो PATRICK, तो आपने यहाँ पे एसेंस के ऊपर फोकस करना है कि क्या उसने ए बोला। ए में और ई में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इसको आपने बहुत ध्यान से एसेंट पर फोकस करना है, नंबर्स पर फोकस करना है। अगला इंपॉर्टेंट टिप, तो जो मैं टिप्स बता रही हूँ साथ में इनको आपने नोट कर लेना है। And could I ask what your occupation is? Dentist. डेंटिस्ट, ये नेक्स्ट आपका आंसर आ गया डेंटिस्ट, DENTIST। अब यहाँ पे ऑक्यूपेशन था तो आपका डेंटिस्ट आंसर आ गया। कोई यहाँ पे एस नहीं आएगा, कोई यहाँ पे ES नहीं आएगा, एंड कुछ नहीं आएगा, सिर्फ डेंटिस्ट। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना, स्पेलिंग्स आपके गलत होने नहीं चाहिए। Okay. Now, a few details about your car. What size is the engine? It's 1200 cc's. Thank you. अब यहाँ पे ना अगर जहाँ पे ब्लैंक्स भी नहीं है तो वो हर एक इंफॉर्मेशन बोलेगा, तो आपकी हमेशा नजर अगली इंफॉर्मेशन के ऊपर साथ बाय साथ होनी चाहिए ताकि आपको ऑडियो का ट्रैक रहे, आप भूल ना जाओ कि ऑडियो कहाँ पर है। अब उसने कार का CC बोल दिया, साइज ऑफ कार, अब नेक्स्ट बोलेगा टाइप ऑफ कार। You. And the make and model? It's a Houghton Sable. Could you spell the model name, please? Could you spell the model name please? अब यहाँ पे अगला टिप, जब भी वो कोई स्पेलिंग बोलता है तो वो रिपीट स्पेलिंग, कोई नेम बोलता है तो नेम की स्पेलिंग वो जरूर बोलेगा। समटाइम्स वो 2 बार बोलता है गलत करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, समटाइम्स वो 1 बार ही बोलेगा। तो राइट डाउन एज यू लिसन एंड फोकस ऑन द एसेंट। Yes. SABLE. तो उसने बोला SABLE, राइट, तो SABLE, इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Oh, yes. Thanks. And when was it made? 1997. Lovely. Right. I presume you've had a previous insurer. Yes. Right. We need to know the name of the company. Yes. It was Northern Star. Thank you. सो इट वॉज अ, तो आपने सुनना भी ध्यान से होता है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपने काफी ध्यान से सुनना भी है। सो इट इज द नॉर्दर्न स्टार। तो अगर आपके स्पेलिंग्स गलत हो जाते हैं, लेट्स आपके नॉर्दर्न के स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैंने बोला जितने भी स्पेलिंग्स एक लिस्टिंग टेस्ट में आप गलत करते हो तो इन स्पेलिंग्स की एक लिस्ट अलग से बना लो, इसको रोज आपने ध्यान से करना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ये सेम वर्ड रिपीट होता है तो आपके स्पेलिंग्स जो है वो गलत होने नहीं चाहिए। And have you made any insurance claims in the last 5 years? Yes. One in 1999. And what was the problem? It was stolen. But That. It was stolen. So the answer is, fifth answer is, it was STOLEN, stolen. तो अगर आपके 5 on 5 करेक्ट आए इसमें, that means you are again very good to go, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। So moving on to the next question. So make sure कि आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो यहाँ तक आपको अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके काम आ रही हैं, तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना, इसको हाइप जरूर कर देना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। It's fine, Mr. Jones. That's all we need to know at the moment. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. So now audio ने बोला, before you do the next of the questions, you have some time to read the questions 6 to 10. अब आपको रीड करने का अगेन मौका मिल रहा है, आपको टाइम मिल रहा है, तो यहाँ पे आपने पहले ही आंसर्स को अगेन करना है प्रिडिक्ट।
नेम ऑफ द अदर ड्राइवर, तो यहाँ पे साइमन है तो लास्ट में कोई सरनेम आएगा तो उसकी स्पेलिंग बोलेगा, आपने स्पेलिंग को ध्यान से सुनना है। रिलेशनशिप टू द मेन ड्राइवर, वो रिलेशनशिप क्या है, ड्राइवर के साथ उसका रिश्ता क्या है, रिलेशनशिप क्या है, ब्रदर है, सिस्टर है, भाई है, कोई भी है, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे आंसर आएगा। 31 जनवरी आपके लिए कीवर्ड रहेगा रिकमेंडेड इंश्योरेंस अरेंजमेंट। नेम ऑफ कंपनी की यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस का, यहाँ पे 7 था तो नीचे 9 एंड 10 पे में आ गई, 8 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ, तो थोड़ा सा इस चीज पर भी आपने फोकस करना है। यूजेस ऑफ कार एक दे के रखा गया है सोशल, दूसरा यूज क्या है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, कार नेम ऑफ कंपनी लिखना है, एंड एनुअल कॉस्ट, एनुअल का मतलब होता है कि साल भर की कॉस्ट कितनी है, तो यहाँ पे डॉलर्स लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो दोबारा डॉलर्स आपने नहीं लिखना, जो भी वो नंबर आएगा तो यहाँ पे नंबर्स में दैट मींस आंसर आएगा। एंड जहां पर नंबर में आंसर आता है, यहाँ पे नेम में आंसर आता है, वहां पर मेन ट्रैप होने का चांस ज्यादा होता है, वहां पर ऑडियंस द स्पीकर है, स्पीकर कैन करेक्ट हिमसेल्फ और इट कैन मिसलीड यू। सो अभी सुनते हैं नेक्स्ट वाली ऑडियंस recording. Now listen and answer questions 6 to 10. And will there be any other named drivers? Just the one. And his name? Simon Painter. Could you spell the surname, please? P-A-Y-N-T-E-R. Okay, thank you. And what relationship is he to you? He's my brother-in-law. And what will you or Mr. Painter be using the car for? Well, mainly for social use. Social use. Will you be using it to travel to work? Yes, sometimes. Travel to work. Anything else? No, that's it. And finally, when would you like to start the insurance? I'll need it from the 31st of January. Right. Mr. Jones, I'm getting a couple of quotes coming up on the computer now, and the best bet looks like being with a company called Red Flag. Yeah? And that comes out at $450 per year. Oh, well, that seems okay. It's quite a bit lower than I've been paying up to now. ओके सो आई होप आपने सारे आंसर्स मेरे साथ साथ करे। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि मैंने क्या किया, मेरा पेन साथ ही साथ क्वेश्चंस पर था, तो साथ ही साथ मैंने हर एक चीज मार्क भी करी कि यूजिंग कार फॉर सोशल उसने बोला, स्टार्टेड उसने बोला, रिलेशनशिप उसने बोला, यहाँ पे था नेम्स ऑफ द ड्राइवर्स, ये मतलब पॉसिबली मोर देन वन नेम हो सकता है, लेकिन उसने बोला देयर इज वन ओनली साइमन पेंटर, उसने पेंटर के स्पेलिंग्स भी बोले, तो आपने एसेंट के ऊपर ध्यान रखना था। रिलेशनशिप उसने बोला ब्रदर इन लॉ, देन यूजेस उसने बोला सोशल, विल यू बी यूजिंग इट फॉर ट्रैवल टू वर्क, उसने बोला यस, सो उसने लिखा ट्रैवल टू वर्क, इसका आंसर था ट्रैवल टू वर्क। इसके बाद कार का नाम उसने बोला रेड फ्लैग, एंड एनुअल कॉस्ट, एनुअल की जगह पर उसने रिप्लेस कर दिया पर ईयर, तो यहाँ पे 450 इसका आंसर था। डॉलर्स का साइन लिखा ही हुआ था, तो आपने इसको रिपीट नहीं करना, अगर आपने इसको रिपीट कर दिया देन आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने 10 के 10 आंसर सारे के सारे अभी तक मेरे साथ के साथ आपने सही किए, दैट मीन्स यू आर very good enough and you can easily score 9 on 9 in your IELTS listening. So I hope this video is working well for everyone preparing for the IELTS exam. Moving on to section 2 next. As you move on to the next sections, the difficulty level will increase. The speed of the audio will also increase. तो आपको आगे और फोकस अपना बना के रखना है, बट जहां पर आपके पास मौका है, जहां पर ऑडियो की स्पीड कम है, तो वहां पर एटलीस्ट आपने इतना अच्छा परफॉर्म करना है कि आपके सारे आंसर सही हो। Great. So, would you like me to go ahead with that? Sure, why not? How would you like to pay?
That is the end of section 1. You we now have half a minute to check your answers. तो सेक्शन 1 जब पूरा हो जाएगा, ऑडियो विल से नाउ यू हैव 1 मिनट और हाफ अ मिनट टू चेक योर आंसर्स. अगर आप एग्जाम दे रहे हो पेन पेपर बेस, तो आपने चेक आंसर्स को नहीं करना, आपने सेक्शन 2 को रीड करना स्टार्ट कर देना है. सेक्शन 2 के ऊपर आपने आ जाना है. अगर आपका पेपर सीडी बेस है तो आपने साथ ही साथ आंसर्स को चेक कर लेना जैसे आपको साथ ही साथ टाइम मिलेगा, क्योंकि पेन पेपर बेस में इन द एंडिंग after the 40th question you will be having 10 minutes to transfer your answers onto the answer sheets, but in CD based exam आपको extra time नहीं मिलता at the finish of your IELTS listening recording. तो आपको साथ ही साथ जब बोला you now have some time to check your answers, तो अगर कोई आंसर में डाउट है, कोई मिस हो गया है, कोई आपका स्पेलिंग गलत हो गया, तो आपने उसी टाइम पे जाके करेक्ट कर लेना, कि दोबारा आपको टाइम नहीं मिलता. So, अगर आपका पेन पेपर बेस है, you have some time in the ending 10 minutes. तो आपने क्या करना है, आगे जाना है, उस आपने आधे मिनट को या 1 मिनट को अगले क्वेश्चंस को रीड करने में आपने यूटिलाइज करना है. अब यहाँ पर देखो आपके पास मैप है, इसमें फोकस करना बहुत ध्यान से आपने. लेट्स लुक एट द मैप. अब सबसे पहले मैप को लेबल करना है. 11 एंड 12 क्वेश्चंस है, नो मोर देन 2 वर्ड्स. और यहाँ पे बोर्ड ट्रिप हेडिंग हमेशा पढ़ो, मैप की जो भी मैप की हेडिंग है वो हमेशा पढ़ो. और यहाँ पे कंपास की डायरेक्शंस आपको दे के रखी गई हैं ऑलरेडी. मेन वर्ड्स पढ़ो, लैंडमार्क्स मैंने बताया, स्टॉप ए, स्टॉप बी, स्टॉप सी एंड स्टॉप डी. 11 12 है, मतलब स्टॉप ए ग्रीन बैंक्स दे के रखा गया है, स्टॉप सी रोमन लैंडिंग दे के रखा गया है. स्टॉप बी का आपने बताना है तो यहाँ पे नाउन आएगा, स्टॉप डी बताना है, यहाँ पर भी नाउन आएगा, तो 2 वर्ड से ज्यादा के इसका आंसर नहीं आएगा. ओके, सो नेक्स्ट इज 13 to 18. ये भी हम साथ में रीड कर लेंगे. यहाँ पे लिखा है नो मोर देन 2 वर्ड्स एंड और अ नंबर. 1 वर्ड का हो सकता है आपका आंसर, 2 वर्ड्स का हो सकता है, एंड मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपका एक जो है वो नंबर यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, तो मेन बुकिंग ऑफिस है, स्टॉप ए की बात कर रहा है. लास्ट बोर्ड कितने बजे आएगी, लास्ट बोर्ड का टाइम यहाँ पे आएगा. यहाँ पे 8 AM है, तो यहाँ पे कितने बजे, यहाँ पे टाइम है, इसको बोलते हैं गैस वर्क करना. और ये देखो यहाँ पे PM लिख रखा है, AM लिख रखा है, तो ये चीजें रिपीट नहीं होंगी. नेक्स्ट इसके साथ स्टॉप ए के लिए ही हैज लवली डैश, मतलब यहाँ पे कोई वर्ब आएगा. लवली क्या है, स्टॉप बी में यहाँ पे अट्रैक्शन नाउन आएगा, एंड अगेन हैज गुड डैश ऑफ सिटी सेंटर. तो यहाँ पे हैज गुड, क्या गुड है, गुड व्यू है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ आ सकता है. स्टॉप सी में म्यूजियम है, बुक शॉप स्पेशलाइजिंग इन डैश, बुक शॉप है जो स्पेशलाइज किस चीज में, ऑब्वियसली कोई बुक का नाम होगा ऐसा, इसको बोलते हैं गेस वर्क करना कि कौन सी बुक कैटेगरी या कौन सी बुक है जिसमें ये है स्पेशलाइज करती है. स्टॉप डी इज यहाँ पे एंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स डैश सिनेमा, डैश मतलब सिनेमा का यहाँ पे बेसिकली नाम हो सकता है. बाउलिंग एलई, वीडियो गेम्स आर्केड ऑलरेडी गिवन है, तो हमने क्वेश्चंस को समझ लिया है. ये तरीका होता है फटाफट से स्पीड से आपने क्वेश्चंस को देख लेना, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या आपने फाइंड करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या देके रखी गई हैं. फटाफट से आपने इतनी चीजें, अगर पेन पेपर बेस दे रहे हो तो पेंसिल से ये सारी चीजें आपने इस तरीके से मार्क कर लेनी है. राइट, so let's get started side by side. Now I'm going to play the audio. तो साथ में करना है, जैसे मैं करूंगी स्पीड से. Look at me कि मैंने ये कैसे किया. Have some time to look at questions 11 to 18. We have read these questions 11 to 18 इसने बोला. तो सेक्शन 2 में भी आपके पास चांस होता है कि हमेशा आपने 11 to 20 एक साथ क्वेश्चंस नहीं करने होते, हाफ हाफ करके ये भी करने होते हैं. तो 11 to 18 है, ये आपने एक साथ ही सारे के सारे करने हैं. इसको हम बहुत ध्यान से करेंगे. Let me forward. Now listen carefully and answer questions 11 to 18. Thank you for calling the tourist line. There are many different ways of getting round the city, and we'd like to suggest some you may not have thought of. How about a city trip by boat? There are 4 main stopping points. From west to east, stop A, Greenbanks, stop B, City Bridge, stop C, Roman Landing, and stop D, Newtown. You can find the main booking office at stop A. The first boat leaves at 8 AM and the last one at 6:30 PM. There are also many attractions you can visit along the river. At stop A, if you have time,
You can visit the fine 16th century palace here, built for the king, with its beautiful formal gardens. It's very near the booking office. Now you can enjoy every corner of this superb residence. Stop B. Why don't you visit Tower Restaurant with its wide range of refreshments? This is a place where you can sit and enjoy the wonderful views over the old commercial and banking centre of the city. Stop C is the area where, in the 1st century AD, invading soldiers crossed the river. This was much shallower than it is now. That's why this area is called Roman Landing. There's an interactive museum to visit here, with a large shop which has a good range of local history books. At the furthest point of the trip, stop D, the most exciting place to visit is the new entertainment complex with 7-screen cinema, bowling alley and video games arcade. ओके तो आई होप आपने ये सारे आंसर्स कर लिए। मैंने साथ साथ में हर एक चीज को मार्क किया है कि उसका आंसर क्या आएगा। अब स्टॉप नंबर बी का था आंसर सिटी ब्रिज, ठीक है। स्टॉप नंबर डी का आंसर था आपका न्यू टाउन। अगर आपने इसको सही से सुना, थोड़ा सा एसेंट में अगर आपकी प्रॉब्लम है तो वो अपने ध्यान रखना, इट वाज न्यू टाउन। इसके बाद 6:30 PM था लास्ट बोर्ड का टाइम। यहाँ पे लवली था, उसने बोला क्या ब्यूटीफुल फॉर्मल गार्डन्स। अगर आपने गार्डन्स सुना तो सही है, अगर आपने गार्डन्स की जगह गार्डन लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। हैज लवली गार्डन्स, तो यहाँ पे गार्डन तब आता अगर यहाँ पे अ लिखा होता तो हैज लवली गार्डन्स, यहाँ पे एस आना ही आना था, जरूरी था। तो स्टॉप बी अट्रैक्शन, यहाँ पे उसने क्या बोला था 15th, ओके। तो यहाँ पे बोला था उसने रेस्टोरेंट बोला था। स्पेलिंग अगेन RESTAURANT। रेस्टोरेंट के भी स्पेलिंग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। हैज गुड व्यू, ये हमने पहले ही आंसर को कर लिया था प्रेडिक्ट, तो इस चीज का मैंने पहले ही आंसर व्यू लिख लिया था। अब उसने नेक्स्ट बोला था म्यूजियम है, बुक्स है, स्पेशलाइजिंग इन दी हिस्ट्री ऑफ द लोकल एरिया। तो बुक्स कौन सी है, यहाँ पे सिर्फ आना था यहाँ पे हिस्ट्री। अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री बुक्स लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बुक शॉप लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसका आंसर सिर्फ हिस्ट्री आना था। तो हैज 18 का आंसर क्या है 7 स्क्रीन सिनेमा। तो अगर आपके सारे आंसर सही हैं, कांग्रेचुलेशंस। स्टिल अगर आपने जो सारी जो टिप्स मैंने बताई साथ में नोट डाउन कर ली हैं, देन वेरी वेरी गुड। तो अगर आप टिप्स को साथ में नोट डाउन करते रहोगे तो आपका इससे फायदा होगा। अगर आपको टिप्स नोट नहीं कर रहे हो तो ये वीडियो देखने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Before you hear the rest of the message, you have some time to look at questions 19 and 20. अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में हम लेट्स सी ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चंस भी आजकल ट्रेंड में है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको है। तो नो मोर देन 3 वर्ड्स है एंड और अ नंबर है। How often do the Top Bus Company tour runs? Top Bus Company tour keyword है how often, मतलब Now कितनी listen बार। and answer questions 19 यहाँ and पे 20. where can you, जगह, place, location। Besides the boat tours, there are city buses. 2 companies offer special services. The Top Bus Company runs all its tours with a live commentary in English. Tours leave from 8:30 a.m. every 20 minutes. There are departures from Central Station, Castle Hill, and Long Walk. This is a hop-on, hop-off service, and tickets are valid for 24 hours. For further details, call Top Bus on 0208 944 7810. The number 1 sightseeing tour is available with a commentary in 8 languages. Buses depart from Central Station every 5 to 6 minutes from about 9 a.m., with the last bus at around 7 p.m. There are also number 1 services with an English-speaking guide. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हाउ ऑफन का आंसर था इसका एवरी 20
मिनट्स। तो एवरी 20 मिनट्स आपने इस तरीके से लिखना है इसका आंसर पूरा। तो 20 यहाँ पे अगर आप TWENTY भी लिखते हैं फिर भी इसका आंसर सही होता, क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ड्स की ऑप्शन आपके पास है। तो इट डिपेंड्स, आपने जिस तरीके से मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हो। 20th क्वेश्चन इज यहाँ पे वेयर कैन यू कैच, मतलब लोकेशन बतानी थी, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेंट्रल स्टेशन। तो मैं यहाँ पे रनिंग हैंड में लिख रही हूँ कि मेरे को ये इजी होता है यहाँ पे आपके लिए समझाना, लेकिन आप मेक श्योर करो कि अगर आप पेन पेपर बेस एग्जाम दे रहे हो तो आपने इन सभी को इन कैप्स ओनली ही लिखना है, इन अपर केस इन कैपिटल लेटर्स ही लिखना है आपने सारा का सारा। तो कैपिटल लेटर्स से लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना, एंड अलोंग विद दिस अपने ब्लैक पेन से लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि पेपर का जो फॉर्मेट है उस तरीके से ही आप इसकी प्रैक्टिस करो। Moving on to section number 3. अब again, as you move on, the listening section will become more difficult. The level will be becoming more difficult as you move on to the next sections. तो जब आपको टाइम मिलता है तो Some time to look at questions 21 to 26. Okay, so now the most difficult part of the listening is section 3, जहां पर आपको इस तरीके से ऐसे ही लॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कि आप लोगों को सही आंसर मिलते ही नहीं है। दूसरी दिक्कत, अगर मैं बोलूं कि आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, सारे अपने ऑप्शंस पढ़ लेने हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। बट अगेन अगर आपकी स्पीड रीडिंग की फास्ट है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सारे क्वेश्चंस के साथ ऑप्शंस में से भी कीवर्ड्स को मार्क कर लो अगर आपकी स्पीड फास्ट है तो। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ लो फटाफट से, एंड ऑडियो जैसे भी बोलेगी फटाफट आपने उस तरीके से इनके आंसर्स को मार्क कर लेना है। लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। द एंटार्क्टिक सेंटर वाज एस्टैब्लिश्ड इन क्राइस्टचर्च बिकॉज, वो क्यों एस्टैब्लिश किया गया था, 3 रीजंस हैं। फटाफट से पढ़ लो कि न्यूजीलैंड है, उसके बाद ज्योग्राफी वेल पोजीशनड है, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो तीनों में से क्या ऑप्शन सही है? क्लाइमेट वाला सही है, ज्योग्राफी वाला सही है, न्यूजीलैंड वाला सही है। इतना ही स्किमिंग स्कैनिंग करनी होती है, डिटेल में आपने जाना ही नहीं होता। वन रोल ऑफ द एंटार्क्टिक सेंटर इज टू, एक रोल क्या है एंटार्क्टिक सेंटर का, क्या है? एक्सपीडिशंस के लिए सुटेबल इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। तो एक्सपीडिशंस होती है जर्नीज, इक्विपमेंट्स होते हैं कोई भी चीजों को आपको प्रोवाइड करना। प्रोवाइड रिसर्चर्स विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसके बाद एंश्योर दैट रिसर्च इज इंटरनेशनली रेलेवेंट, तो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियली रेलेवेंट की बात कर रहे हैं, एक्सपीडिशंस की बात कर रहे हैं, तो तीनों की बात करेंगे। तीनों में से सही बात कौन सी, एक्सपीडिशंस की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की है, या इंटरनेशनली रेलेवेंट की है? पर्पस ऑफ विजिटर सेंटर इज टू, पर्पस क्या है? एकोमोडेशन का पर्पस है, ट्रेनिंग सेशंस का पर्पस है, तो शो पीपल व्हाट एंटार्क्टिका इज लाइक, वो कैसा है लोगों को दिखाना। डॉक्टर मेरीवेदर सेज दैट एंटार्क्टिका इज, एंटार्क्टिका क्या है डॉक्टर मेरीवेदर के अकॉर्डिंग? अनलाइक एनी अदर कंट्री, किसी कंट्री के जैसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एंड टू कोल्ड फॉर टूरिस्ट है। तीनों में से क्या है? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेरीवेदर एंटार्क्टिका इज वेरी कोल्ड, क्यों है? शेप करके, फ्रोजन सी से सराउंड हुआ इस करके, एक्सट्रीमली ड्राई कॉन्टिनेंट है इस करके। And the last question says Dr. Merriweather thinks Antarctica was part of another continent because another continent का part था, क्यों? It has done his own research in the area, own research की बात कर रहे हैं, geological evidence है, it is very close to South America। मतलब छोटे छोटे कीवर्ड्स आपने मार्क करने, डिटेल में आपने सारा कुछ मार्क नहीं करना होता। I hope you are getting this. So now I'm going to play the audio और आपने साथ में बताना है कि कौन सा सही आंसर है और कौन सा आंसर रॉन्ग है। We'll doing it side by side. Let's get started. Answer questions 21 to 26. We're pleased to welcome Dr. Martin Merriweather of the Antarctic Centre in Christchurch, New Zealand, who has come along to talk to us today about the role of the centre and the Antarctic Treaty. Now, my first question is about the choice of location for the centre. Why Christchurch? Was it because of the climate? Well, actually, New Zealand is the second closest country to Antarctica, and Christchurch is often used on Antarctic expeditions. Right, so it's because of where we are, coupled with our historical role. So tell us, what is the main purpose of the centre? Oh, well, we have 2 complementary roles. One is as a scientific base for expeditions and research,
and the other is as an information centre. Tell us something about the role as a scientific base. Well, we're able to provide information about what scientists should take with them to the South Pole. For example, the centre contains a clothing warehouse where expeditions are supplied with suitable clothing for the extreme conditions. I suppose you need a bit more than your normal winter coat. Yes, exactly. And then there's also the specialist library and mapping services. Right. And which countries are actually located at the centre? Well, the centre houses research programs for New Zealand, for the United States, as well as for Italy. There's even a US post office at the American Air Force Base here. Really? And what does the visitor centre offer? Well, since very few people will ever experience the Antarctic firsthand, the Visitors Centre aims to recreate the atmosphere of Antarctica. There's a mock campsite where you can see inside an Antarctic tent and imagine yourself sleeping there. And the centre also acts as a showcase for the unique international cooperation which exists in Antarctica today. What is it actually like at the South Pole? I know you've been there on a number of occasions. Yes, I have, and each time I'm struck by the awesome beauty of the place. It's magnificent, but you can really only visit it in the summer months. October to March. Yes, because it's completely dark for 4 months of the year. And, in addition, it has to be the coldest place on Earth. Colder than the North Pole? Why is that? Well, unlike the North Pole, which is actually a frozen sea, Antarctica is a landmass shaped like a dome, with the result that the winds blow down the slopes at speeds of up to 150 kilometres an hour. And that's what makes it so cold. Oh. And one other interesting thing is that Antarctica is the driest continent on Earth, surprisingly. And so you have to drink large amounts of water when you're there. How old is Antarctica? Oh, we're pretty sure it was part of a larger landmass, but it broke away from the rest of the continent 170 million years ago. How can you be certain of this? Because fossils and rocks have been discovered in Antarctica, which are the same as those found in places such as Africa and Australia. Amazing. To think that it was once attached to Africa. So ये सारे क्वेश्चंस हमने कैसे किए, जैसे हमने सुना वैसे वैसे ही मैंने सारे मैंने मार्क किए। तो यहाँ पर बात कर रहे थे वेल पोजीशनड की, कि ज्योग्राफी को जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, इसका आंसर बी है। उसके ने बोला वन रोल, तो उसने बोला कि हम जो क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं, जो हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो इसके बारे में उसने सही आंसर बोला था। इट शो केसेस एंटार्क्टिका कैसा है, इसके बारे में उसने ये बोला था। डॉक्टर मेरीवेदर सेज एंटार्क्टिका इज, उसने बोला आई वाज मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दिस लोकेशन। इसका बहुत ही क्लियर आंसर ये था। तो टूरिस्ट के लिए उसने बोला था कोल्ड नहीं है, इट इज द कोल्डेस्ट जगह, उसने ये पूरा ओवरऑल बोला था। तो टूरिस्ट के लिए उसने बोला था 4 मंथ, क्योंकि वो 4 मंथ में वो डार्क रहता है। तो इसमें होता क्या है, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, समटाइम्स द इंफॉर्मेशन इज पार्शियली गिवन या पार्शियली करेक्ट। तो जो कंप्लीटली करेक्ट है आपने उसको ही मार्क करना होता है। आधी अधूरी अगर कोल्ड की बात करें, आप कोल्ड का आंसर नहीं लगा सकते, तो कोल्ड टूरिस्ट के लिए है या नहीं है तब भी आपका ये आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे शेप के बारे में कहा था कि डोम शेप है, अनलाइक जो अदर प्लेसेस है वो फ्रोजन सी के साथ सराउंडेड है, इसकी शेप जो डोम है इसके लिए ये कोल्ड है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दी लाइंस, उसने क्या बोला। और यहाँ पे बोला फॉसिल एविडेंस हैज बीन फाउंड, उसने बोला कि हाउ आर यू सो श्योर। तो उसने अगर इतना ही आपने सुन लिया कि हाउ आर यू सो श्योर, दैट मीन्स क्या कोई प्रूफ की बात करेगा, कोई एविडेंस की बात करेगा। और यहाँ पे एविडेंस उसने फॉसिल फ्यूज के रिगार्डिंग उसने एविडेंस दिया था, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा बी। मतलब ओवरऑल मैं यहाँ पे 2 बातें बोलूंगी, जो आपने कीवर्ड्स को मार्क करा वो चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दूसरी चीज फ्रेजेस जो है कि क्या सही है क्या गलत है उसको जस्टिफाई करता है, वो आपके पास सही आंसर को बताता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज कि आपका फोकस एज यू लिसन टू द ऑडियो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप तीसरी चौथी बात कि आपको कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन होते हैं कि वो किस चीज के रिलेटेड वो आपको बात कर रहा है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस नाउ। Before you hear the rest of the interview, you have some time to look at questions 27 to 30. So यहाँ पे 27 to 30 आपके पास इंफॉर्मेशन, वन वर्ड एंड और अ नंबर। तो यहाँ पे डेट आएगी, ऑब्वियसली इवेंट है वॉज डैश, तो यहाँ पे वर्ब आएगा। चूज 2 लेटर्स, अब आपके पास
5 में से 2 चूज करने। इसमें ये होता है आपके पास ऑप्शंस ऑर्डर वाइज नहीं बोलेंगे, वो मिक्स करके बोलेंगे। तो आपने 2 सही ही किया है, वो आपने सुनने हैं। Now listen and answer questions 27 to 30. तो इतना ही टाइम मिलता आपको। Now, let's just have a look at the Antarctic Treaty. How far back does the idea of an international treaty go? Well, as far back as the 19th century, when 11 nations organised an international event. When was that exactly? In 1870, and it was called the Polar Research Meeting. And then, not long after that, they organised something called the First International Polar Year. And that took place when exactly? Over 2 years, from 1882 to 1883. But it wasn't until the 1950s that the idea of an international treaty was proposed. And in 1959, the treaty was actually signed. What do you see as the main achievements of the treaty? Well, firstly, it means that the continent is reserved for peaceful use. That's Article 1, isn't it? Yes, That's important since the territory belongs to everyone. yes, but not as important as Article 5, which prohibits any nuclear explosions or waste disposal. Which is marvellous. Well, I'm afraid we're going to have to stop there because I'm afraid we've run out of time. Thanks for coming along today. अब ये जो आपके लास्ट वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, ये काफी ज्यादा इजी थे क्योंकि इसमें 2 लेटर्स बोला, उसने 2 पॉइंट्स ही बोले एंड दोनों पॉइंट्स उसने फर्स्ट पॉइंट बोला फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो मतलब नो मिलिट्री यूज, ये आपका सिनोनिम यूज हुआ। दूसरा उसने बोला कि न्यूक्लियर टेस्टिंग इज प्रोहिबिटेड, नो का मतलब प्रोहिबिटेड, वो उसको अलाउ नहीं करते, वो बैन है, न्यूक्लियर टेस्टिंग इज बैन। तो इसमें सारे ऑप्शंस नहीं बोले, काफी इजी था। यू जस्ट हैव टू पे अटेंशन कि वो क्या चीज को बोल रहे हैं। अगेन अगर आपके पास डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो मेक श्योर करो कि आपको ये सारे ऑर्डर वाइज नहीं आएंगे, ये आपको सिर्फ मिक्सड अप करके आएंगे। बट अगर आपको सिर्फ ये ऑप्शन ही 2 बोले, दैट वाज आई थिंक प्रिटी नाइस एंड प्रिटी इजी था ये आपके लिए। तो नाउ यू हैव सम टाइम, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट पार्ट सेक्शन And telling us all about the centre and its work. First, you have some time to look at questions 31 to 40. तो नाउ ट्रेंड हैज बीन चेंज्ड। तो जब मैंने एग्जाम पहली बार दिया था आज से 9 इयर्स पहले, तो मेरे को भी ऐसा ही फॉर्मेट आया था। आजकल लिस्टिंग में क्या चल रहा है, 1 वर्ड की ब्लैंक्स, लेकिन समटाइम्स आपको सेक्शन 4 में भी मल्टीपल चॉइस देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको हो गया ओ माय गॉड गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, देन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करने ही पड़ेंगे। तो अब भी हमने डिस्कस की है, तो लेट्स डू इट वंस अगेन विद कंप्लीट एम्बिशंस एंड फोकस। लेट्स सी इसके क्या क्या आंसर्स हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अनीता फर्स्ट फेल्ट द मैथ्यूज आर्टिकल वाज ऑफ वैल्यू व्हेन शी रियलाइज। तो क्या रियलाइज हुआ, डिफिकल्टीज की बात कर रहे हैं, कनेक्शंस की विद म्यूजिक की बात कर रहे हैं, इंप्रेसिव साइज की बात कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। अनीता फील्स दैट फाइंडिंग्स ऑन हैंडेडनेस विल बी द वैल्यू इन, किसमें, आइडेंटिफाइंग स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद प्लान टैक्टिक्स फॉर ईच गेम, डेवलपिंग सुटेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं। द फील्स दैट मोस्ट स्पोर्ट्स कोचेस नो नथिंग अबाउट द इन्फ्लुएंस के बारे में, फोकस ऑन रॉन्ग एस्पेक्ट्स, अंडर एस्टिमेट द साइंस। A German study showed there was greater mixed-handedness in musicians who started game playing instruments with early youth है यहाँ पे, वायलिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रेट डील प्रैक्टिस है की बात कर रहे हैं। तो स्टडीज ऑन एप बिहेवियर शो दैट एप्स विच ऑलवेज यूज सेम हैंडेड एज गेट टू फूड सक्सेसफुल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मोर एप्स आर, कंपैरिजन की बात करें तो सिर्फ देखो कि मैंने सारा नहीं रीड करा, मैंने मेन वर्ड्स को सिर्फ मैंने मार्क करा। तो यही चीज आपने करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। और लास्ट में आपके पास ये ब्लैंक्स है, कमेंट्स है, हॉकी है, टेनिस है, जिम्नास्टिक्स है, 1 वर्ड एंड और अ नंबर। ये भी सेक्शंस को रीड करना बहुत जरूरी है। तो 31 to 40 सारे क्वेश्चंस मैंने बोला 1 गो में ही आएंगे, दोबारा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो 31 से 40 क्वेश्चंस चाहे जो मर्जी हैं, आपने उसको एक बार में ही पढ़ लेना। Now listen carefully and answer questions 31 to 40. My topic is handedness.
whether in different sports it is better to be left or right-sided, or whether a more balanced approach is more successful. I'm left-handed myself, and I actually didn't see any relevance to my own life when I happened to start reading an article by a sports psychologist called Peter Matthews. He spent the first part of the article talking about handedness in music instead of sport, which I have to say almost put me off from reading further. But what I soon became struck by was the sheer volume of both observation and investigation he had done in many different sports, and I felt persuaded that what he had to say would be of real interest. I think Matthew's findings will be beneficial, not so much in helping sports people to work on their weaker side, but more that they can help them identify the most suitable strategies to use in a given game. Although most trainers know how important handedness is, at present they are rather reluctant to make use of the insights scientists like Matthews can give, which I think is rather short-sighted, because focusing on individual flexibility is only part of the story. Anyway, back to the article. Matthews found a German study which looked at what he called mixed-handedness, that is, the capacity to use both left and right hands equally. It looked at mixed-handedness in 40 musicians on a variety of instruments. Researchers examined a number of variables. For example, type of instrument played, regularity of practice undertaken, and length of time playing instrument, and found the following. Keyboard players had high levels of mixed-handedness, whereas string players like cellists and violinists strongly favored one hand. Also, those who started younger were more mixed-handed. Matthews also reports studies of handedness in apes. Apes get a large proportion of their food by fishing ants from anthills. The studies show that apes, like humans, show handedness, though for them right and left-handedness is about equal, whereas about 85% of humans are right-handed. Studies showed that apes consistently using the same hand fished out 30% more ants than those varying between the two. Matthews started researching several different sports and found different types of handedness in each. By the way, he uses handedness to refer to the dominant side for feet and eyes as well as hands. Anyway, his team measured the hand, feet, and eyes of 2,611 players and found that there were really three main types of laterality. Mixed, you work equally well on both sides, both hand and eye. Single, you tend to favor one side, but both hand and eye favor the same side. And cross-laterality, a player's hands and eyes favor only one side, but they are opposite sides. Let's start with hockey. Matthews found that it was best to be mixed-handed. This is because a hockey stick must be deployed in two directions. It would be a drawback to have hand or eye favoring one side. An interesting finding is that mixed-handed hockey players were significantly more confident than their single-handed counterparts. Things are slightly different in racket sports like tennis. Here, the important thing is to have the dominant hand and eye on the one side. This means that there is a bigger area of vision on the side where most of the action occurs. If a player is cross-lateral, the racket is invisible from the dominant eye for much of the swing. It means that they can only make corrections much later, and often the damage has been done by then. And moving to a rather different type of sport, which involves large but precise movements, gymnastics. It's been found that cross-hand-eye favoring is best. The predominant reason for this
is because it aids balance, which is, of course, absolutely central to performance in this sport. Okay, so I think That is the end of section 4. कर लिए सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी एंड ब्लैंक्स भी. अब ब्लैंक्स में इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे आना था टू डायरेक्शंस, तो प्लूरल था, टू है, ऑब्वियसली मींस कि यहाँ पे डायरेक्शंस ही आना था, सिंगुलर नहीं आना, प्लूरल ही यहाँ पे आंसर आएगा. 37 था कॉन्फिडेंट, स्पेलिंग का ध्यान रखना, CONFIDENT कॉन्फिडेंट. और यहाँ पे था फील्ड लार्जर एरिया ऑफ विजन, फील्ड था लेकिन आपको ऑडियो में था एरिया ऑफ द विजन. सो क्रॉस लेटरल प्लेयर्स मेक करेक्शंस, अगेन कोई ऐसा वर्ड ब्लैंक के पहले नहीं है जो ये शो करे कि इसका आंसर सिंगुलर आएगा, तो करेक्शंस बहुत क्लियरली बोला था. इसके बाद बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट विच इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, उसने इसका सिनोनिम इस तरीके से बोला था. सो दिस इज हाउ इसकी ब्लैंक के ये आंसर्स थे. सो नाउ लेट्स डिस्कस मल्टीपल चॉइस के आंसर्स. तो मल्टीपल चॉइस के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आपके पास काफी ज्यादा इजी था. सबसे पहले अगर मैं 31 की बात करूं, 31 में उसने पहले क्या बोला था म्यूजिक को लेके, लेकिन बट उसने इसके आगे बट बोल दिया. मैंने आपको कहा था कि बट हाउ एवर, मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, जैसे वो वर्ड्स यूज करे वैसे ही वो आपका पॉइंट हो जाएगा. एलिमिनेट, इंप्रेसिव साइज का उसने सिनोनिम बोला था, इसका आंसर सी वाज करेक्ट आंसर. उसके बाद बी का उसने आंसर नॉट ओनली इन आइडेंटिफाइंग, नॉट इन आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस बोला था, बट डेवलपिंग स्पेशल स्ट्रैटेजीज उसने बोला था, इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. तो कोचेस के लिए इसका आंसर क्या था ये मेरे को आपने बताना कमेंट सेक्शन में, इसने क्या था और क्यों था इसका आंसर. तो जर्मन स्टडी शोज दैट. इसके बाद वायलिन का था, तो ये मिक्स हैंडेड यूज नहीं करते, अर्ली वाला में बोला था कि मिक्स हैंडेडनेस से यूज करते हैं. ह्यूमंस वाले में इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था आंसर. इसके बाद यूज द सेम हैंड, इसका आंसर आपने ये बोला था, इसका आंसर आपका ए था. तो अगर आपको ये आज का वीडियो समझ में आई हो एंड इफ यू वांट द कंप्लीट स्ट्रैटेजीज, द कंप्लीट नोट्स जो मैंने आपको दिखाई थी रिलेटेड टू माय रिलेटेड टू ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जो अभी ये पीडीएफ मैंने दिखाई है आपको. इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन की जो टिप्स थे आपके पास, ये आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए रिलेटेड टू आइल्स लिसनिंग, even if you want listening practice material, listening guidance, listening complete guide, just drop me complete guide or complete listening test. I will be sharing the link to the complete listening test, practice listening test and the complete guide totally free of cost. So अगर आपको ये वीडियो informative लगी, complete course अगर आपको ये अच्छा लगा, then do give it a thumbs up, share it with your friends and do not forget to subscribe my channel and hype this channel for more daily informative videos on IELTS. इसके पहले एक मैं चीज आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करा हुआ है तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा. लेट मी शो यू. तो चैनल की मेंबरशिप को अगर आप लेते हो तो उससे आपको फायदा ये होगा, तो आपने सर्च करना है IELTS विद अमन. तो IELTS विद अमन अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहला ये मेरा चैनल ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा. एंड मैं इस पे नॉर्मली मेंबर्स के लिए काफ़ी सारी मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ यहाँ पे. तो कुछ वीडियोस हैं जो सिर्फ मैंने मेंबर्स के लिए ही डाली हुई हैं. मैं आपको मेंबरशिप शो कर देती हूँ. दिस इज द मेंबरशिप एंड आई हैव ओवर 600 वीडियोस, अराउंड 693 वीडियोस ऑन माय चैनल. तो ये जो कुछ वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए ही मैं डालती हूँ. और मैंने लेटेस्ट स्पीकिंग का कोर्स ये शुरू किया हुआ है फॉर द मेंबर्स ऑफ दिस चैनल ओनली. तो स्पीकिंग में भी क्यू कार्ड्स जो आपने स्मार्ट स्ट्रेटजीज यूज करनी है, आप लोगों को नहीं पता चलता कि आपने क्यों, कैसे, कब, क्या गलती कर जाते हो. तो ये अगर आपने मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, डू मस्ट ज्वाइन एट 179 रुपीज ओनली, जिसमें आपको स्पेशल कोर्सेज मिलते हैं, स्पेशल लाइव क्लासेस भी रहती है, हफ्ते में एक बार लाइव क्लास आती है ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ द चैनल एंड स्पेशल कोर्सेज मैं लॉन्च करती रहती हूँ फॉर द मेंबर्स. सो दिस इज माई चैनल. आई हैव मोर देन 600 वीडियोज. इसको जरूर एक्सप्लोर करना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे. कमेंट्स पढ़ना, कितने ज्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं कि कितना स्टूडेंट्स को इससे फायदा होता है. So that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.